Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. Today is the day for revision. So basically we are going to revise the whole light chapter we have studied till now. ठीक है, और हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट भी हो गया. ठीक है, आज हम रिवीजन करेंगे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू ओपन योर नोटबुक्स, ओपन योर नोट्स, ऑलराइट. और जो भी चीज़ें छूट गई हो, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, राइट, कोई भी अगर ऐसी बात है तो यू कैन डेफिनेटली note them down and now is the time to make sure that your notes are proper. ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, अब अपने नोट से रिवीजन करेंगे और मैं आपको फिर बताते चलूँगी. ठीक है, सो दिस इज द लेक्चर फॉर रिवीजन एंड देन वी विल बी गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस टुडे, नहीं नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइट से रिलेटेड. सो वी विल बी रेडी फॉर दैट टू, राइट. अब देखिए, यू ऑल नो दैट वी डू स्टडी फॉर दी स्कूल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द ओलंपियाड सेक्शन, राइट. तो बेसिकली अगर आप ओलंपियाड्स के लिए फाइट कर रहे हैं, अगर आप स्कूल एग्जामिनेशन के लिए फाइट करना चाहते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, देन यू आर इन द राइट प्लेस, राइट. यू शुड डेफिनेटली नो दैट कि हम लोग आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशंस के साथ साथ ओलंपियाड्स की भी तैयारी कर सके, उनको भी क्रैक कर सके, एंड दैट वुड बी सो अमेजिंग थिंग, राइट. If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You need to write the code here, TTB07. आपको TTB07 लिखना होगा, ठीक है, सर्च बॉक्स में, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में, एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs and study material over there. Alright, that would be so good if you do so, right? Now see, this is the team which is going to help you a lot, and this team is actually working hard so that we provide you the content, and from that content if you study from these video lectures then you can definitely going to crack the examination if you have all those things needed to get that, right. That means hardship, you need to be disciplined, you need to study more, you need to revise more, right. If you do so, then I'm sure then you will be able to crack all the examination. All right, now see, in accordance to that we have created some packages for you all. ये लेक्चर्स तो फ्री हैं सभी लोगों के लिए, बट उसके अलावा भी हम लोगों ने क्या किया है, आपके लिए कुछ पैकेजेस प्रिपेयर किए हैं, एंड टू एक्सेस दोज पैकेजेस यू कैन डेफिनेटली गो ऑन आवर वेबसाइट www.talkingtextbooks.in. So whenever you talk about all the necessary things you need to crack any examination, you should definitely know about these packages. The full package definitely going to include all those things. So what you will be getting is the comprehensive study material, recorded live classes, homework submission feature, bi-weekly quizzes, periodic test papers. All these things are going to help you a lot. Every single thing is important, and every single thing is going to make sure that you do study from these things, right. That would be the most important thing, right. You need to check your progress, kitna progress kiya. That's how this testing feature will be going to help you. You need to study more, you need to revise more, you need to understand, you need to do the homework, right. तो इतना सब कुछ करने के लिए जो हमने पैकेजेस बनाए हैं, दैट इज़ द फुल पैकेज. अपने आप में वो फुल है, दैट इज़ द मेन थिंग, राइट. बट इफ़ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन द टेस्टिंग पार्ट देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दी टेस्ट सीरीज, राइट. यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट. दीज जो टेस्ट सीरीज है डेफिनेटली उसमें सब टेस्टिंग पार्ट होता है, तो वो भी बहुत बढ़िया होता है, राइट. सो दैट इज़ द मेन थिंग ऑल्सो. तो यहाँ पर टेस्टिंग पार्ट में यू विल बी गेटिंग द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, बाई वीकली क्विजेस अलॉन्ग विद दी lectures. ठीक है, तो that would be so cool. You can study from these lectures, you can attempt the quizzes, you can definitely get that कि भाई तुम्हारा testing part clear हो जाएगा. Alright, so if you want to buy them, if you are interested in buying them, you can use my code CYLIVE over there, and when you use my code CYLIVE, then you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. And if you are like not into buying thing but you want to know more about these features, about these packages we have prepared, so if you do so then you can call us on the number 919549041111. Alright, so that would be your part. Either you can choose to get the test series, or either you can choose to get the full package. Alright, that's on you, that's you have to decide. नाउ सी, हम आज क्योंकि हमें लेक्चर पूरा रिवाइज करना है, ठीक है, तो हम लेक्चर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. सो लेक्चर 1 के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ लाइट स्टडी किया था, ठीक है. उसके पहले देख लो, तुम प्रॉमिस कर लो फटाफट से कि भाई यू विल बी रिवाइजिंग द होल चैप्टर टुडे विद मी. ऑलराइट, सो दैट इज़ द मेन थिंग. आप पूरा लेक्चर देखेंगे और पूरा लेक्चर में साथ साथ रिविजन करेंगे, अपने नोट्स को प्रॉपर करेंगे. दैट शुड बी अ प्रॉमिस फॉर टुडे, ठीक है. चलो अभी हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया था व्हेन वी टॉक अबाउट दी इंट्रोडक्शन, जब हमने लाइट को बिल्कुल जाना था भाई स्टार्टिंग में, व्हाट इज़ दैट, हाउ इट हेल्प्स, लाइक दैट.
तो हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए थे एंड व्हाट वाज दोज क्वेश्चंस, विच सेंस हेल्प इन सी थिंग, कौन सी ऐसी सेंस होती है जो हमें देखने में मदद करती है, और उसके लिए हमने क्या आंसर दिया था, सभी को पता है भाई सेंस ऑफ विजन, जो हमारा विजन का सेंस है वो ही हमें हेल्प करता है चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था, कैन वी सी लाइट, क्या हम लाइट देख सकते हैं, तो कई बच्चे हो सकता है सही बोलें कि भाई हाँ हम लोग देख सकते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, हम लाइट नहीं देख सकते, ठीक है। सो दैट शुड बी द आंसर नो। फिर देखो, कैन वी सी थिंग्स, क्या हम चीज़ें देख पाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पेन, कॉपी, अपनी बुक्स, अपने कर्टेन्स, अपना रूम, सब कुछ तो देख पा रहे हो, तो दैट मीन्स वी कैन सी लाइट्स, राइट, सी थिंग्स नॉट द लाइट, वी कैन सी थिंग्स डेफिनेटली। कैन वी सी थिंग्स इन द डार्क, दैट वुड बी अ ग्रेट नो, बिकॉज आपको पता है भाई लाइट अगर चली जाए, रात में अगर लाइट चली जाए, चारों तरफ अंधेरा हो, तो यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स, राइट, तब तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इवन आपके सामने जो ग्लास रखा है वो भी आपको नहीं दिखाई देगा, राइट, दैट इज द मेन थिंग, हमें डार्क में चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन अगर लाइट वहाँ प्रेजेंट हो तो हमें बाकी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, राइट। फिर देखो, कैन वी सी थिंग्स इफ देयर इज लाइट बट नो सेंस ऑफ साइट, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई लाइट तो आसपास हो बट सेंस ऑफ साइट नहीं हो, तो भी हम लोग नहीं देख पाएंगे, राइट। चलो, उसके बाद इन सब बातों को देख के कि भाई लाइट हमें नहीं दिखाई देती है, हमें चीज़ें डार्क में नहीं दिखाई देती हैं, हमें लाइट की प्रेजेंस में चीज़ें दिखाई देती हैं, तब जाके हमने ये पता किया व्हाट इज दैट लाइट, दैट लाइट इज एक्चुअली एन इज इनविजिबल एनर्जी, जो कि क्या करती है, दूसरी चीज़ों को विजिबल बनाती है। बेसिकली वो क्या करती है, खुद तो इनविजिबल होती है, खुद तो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो बाकी दूसरों चीज़ों को विजिबल बना देती है, तो वो एक तरीके से हमको सेंस ऑफ साइट दे देती है, राइट। तो दैट इज व्हाट वी हैव सीन, लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को ऐसा लगता है हम देख पाते हैं, और वो सेंसेशन हमें मिल पाता है, ऑलराइट, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने सोर्स ऑफ लाइट को देखा था। व्हाट इज दैट सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है भाई ऐसी कोई बॉडी जिससे क्या होता है, जिससे सारी की सारी जो सोर्सेज हैं वो आपको पता चल जाए, ऑलराइट। सो ऐसी चीजें जिससे लाइट आती है, दैट कैन बी टेकन एज द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। छोटी मोटी जैसे भी चीजें, अगर वो लाइट एमिट कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर खुद से लाइट एमिट कर रही है, तो हम क्या बोल देते हैं कि भाई उसके अंदर से लाइट आ रही है, दैट मीन्स इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, वहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो हम उसे सोर्स बोल देते हैं। अब वहाँ बहुत तरीके के सोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। तो देखो, दीज बॉडीज विच एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन आर द सोर्सेज ऑफ लाइट, ऐसे सोर्सेज, ऐसी ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट आती है, जिनसे हमें लाइट मिलती है, दैट कैन बी टेकन एज द सोर्स ऑफ लाइट। अब ये सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट साइज भी होता है और बड़ा भी होता है, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि या तो वो हमेशा बड़ा ही होगा सन की तरह, या फिर हमेशा वो छोटा ही होगा, ऐसा तो नहीं होता। अभी तुम देखो, तुम ये सन के बारे में जानते हो, वो सोर्स ऑफ लाइट होता है, राइट, वो कितना बड़ा है, वो अर्थ से भी पता नहीं कितना बड़ा है, राइट, तो दैट इज अ बिग सोर्स ऑफ, दैट इज लाइट, यू कैन से द लार्जर बॉडीज। बट अगर आप जुगनू की बात करो, जुगनू, हमारा छोटा जुगनू, तो अगर इसकी बात करो तो ये तो पॉइंट साइज होगा, है ना, हमको से बस एक छोटा सा लाइट ऐसे छोटा सा एक पॉइंट जो कि बिल्कुल चमचमाता सा दिखता है और वो इधर उधर उड़ते रहता है, राइट, तो दैट कैन बी टेकन, कोई स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज आपको सोर्स भी मिल सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ सोर्सेज। टाइप्स ऑफ सोर्सेज दो तरीके के होते हैं, लुमिनस, नॉन लुमिनस, ठीक है। अब देखो, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में ऐसे सोर्सेज आते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, ऑलराइट, और नॉन लुमिनस में कौन से होते हैं, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। वो क्या करते हैं एक्चुअली में, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती पर दूसरों की लाइट जब उन पर पड़ती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ये उनका मेन फीचर होता है। और उसमें सबसे बढ़िया नेचुरल चीज़ कौन है, हमारा मून। यू कैन सी द नेचुरल नॉन लुमिनस थिंग क्या है, हमारा मून। यू कैन ऑल्सो सी द प्लैनेट्स, यू कैन सी, ये तो फिर नेचुरल हो जाएंगे, राइट, लेकिन जो मैन मेड आर्टिफिशियल होंगे, फिर कुछ भी हमारे रूम में जो भी चीज़ हमको दिखाई दे रही है वो सब की सब नॉन, यू कैन से आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में आती है, ठीक है। अब देखो, अगर हम मीडियम ऑफ लाइट की बात करें, मीडियम ऑफ लाइट, भाई लाइट अगर किसी मटेरियल में से जाने की कोशिश करती है या जाती है तो हम उसको बोल देते हैं मीडियम ऑफ लाइट, ठीक है। तीन तरीके के मीडियम हम लोगों ने देखे थे, क्या क्या देखे थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूशन, ऑपिक, ये तीन तरीके के मीडियम हम लोगों ने देखे थे। पहला देखो ट्रांसपेरेंट, ऐसा मीडियम जिसके थ्रू यू कैन सी,
जैसे कि एयर, यू कैन सी थ्रू द एयर, एयर तुम्हारे आसपास मौजूद है फिर भी तुम देख पाते हो, राइट? तो दैट मीन्स यू कैन सी थ्रू द एयर, दैट मीन्स एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो कांच, ग्लास, आप उसमें से देख पाते हो। कैन यू सी द फिश हियर? यस यू कैन, दैट मीन्स यू कैन सी थ्रू दैट ग्लास, दैट मीन्स दैट वुड बी टेकन एज द ट्रांसपेरेंट मीडियम। एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में के अंदर जो लाइट होती है वो पूरे तरीके से जा पाती है, ठीक है? उसको फुली एंट्री मिल जाती है, लाइट उसमें से ट्रांसमिट हो जाती है। ऐसी चीज़ों को हम बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। फिर देखो बात करते हैं ट्रांसलूशन में, ऐसी ऑब्जेक्ट जिनके आर पार अगर आप देखने की कोशिश करें, मतलब आप जिस चीज़ के थ्रू देखने की कोशिश करें तो आपको पूरा क्लियर नहीं दिखाई देगा, बट आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा दैट समथिंग समवन इज बिहाइंड दी दैट मटीरियल, ऐसा आपको लग जाएगा अंदाज़ा। जैसे 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 बटर पेपर, ठीक है? आप बटर पेपर जब यूज़ करते हो तो आप उसके अंदर से पूरा क्लियरली नहीं देख पाते, बट आपको हल्का फुल्का तो दिखाई देता है, राइट? दैट मीन्स लाइट फुली नहीं जा रही है, लाइट पार्शली जा रही है, थोड़ी सी लाइट जा रही है और कुछ लाइट नहीं जा पा रही है, ठीक है? ऐसे मटेरियल जिनमें से थोड़ी सी लाइट जा पाती है और थोड़ी सी लाइट नहीं जा पाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूशन, ठीक है? फिर आती है ऐसी ऑब्जेक्ट जिनमें से बिल्कुल भी लाइट नहीं जा पाती, उनको हमने क्या बोल दिया? ऑपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि बिल्कुल भी लाइट नहीं जा पाती, और ऐसी न जाने कितनी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं और जिनके थ्रू हम देख भी नहीं पाते, ठीक है? अब जैसे आप सोचिए, जैसे हम लोग बात करते हैं बेड की, यू कैन नॉट सी थ्रू बेड, ठीक है? आप बेड के अंदर से नहीं देख सकते, अब डोर के अंदर से सी थ्रू, अगर जब तक कांच का नहीं होगा तब तक वुडन के डोर में से यू कैन नॉट सी थ्रू, राइट? तो तुम नहीं देख पाओगे, दैट कैन बी टेकन एज द ऑपिक ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स लाइट उसमें से नहीं जाएगी, ठीक है? अब चलते हैं हम आगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मैंने तुम्हें बताया था कि लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन बट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में जाती है लेकिन हमेशा स्ट्रेट जाती है। बचपन में हम लोगों ने ड्राइंग बनाई थी ना सन की, कैसे बनाई थी? ऐसे बनाई थी, है ना? हम लोगों को बचपन से यही सिखाया था कि बस सन ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, है ना? ये तरीका सब सोचो, पहले से हमें पता था कि ये जो सनरेज हैं वो सारी की सारी सीधे जाती है और सभी डायरेक्शंस में जाती है, ऐसे करके सभी डायरेक्शंस में जाती है और बिल्कुल सीधे जाती है। तो मतलब हमें पहले से पता था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, बस हमें थोड़ा अंदाज़ा नहीं था कि यही है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ठीक है? तो कोई भी बॉडी जब लाइट को एमिट करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है? लाइट जब कभी भी किसी भी बॉडी में से जा रही है या फिर किसी भी बॉडी एमिट हो रही है, तो उस वक्त क्या होता है? लाइट हर एक डायरेक्शन में जा रही होती है, हर एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और हर एक डायरेक्शन बिल्कुल सीधे सीधे जा रही है। लेट्स से इफ दैट लाइट इज गोइंग इन द ईस्ट, तो बिल्कुल ईस्ट में बिल्कुल सीधे जा रही है, पर ऐसा नहीं है वेस्ट में कोई लाइट रे नहीं जा रही, वेस्ट में भी लाइट रे जा रही है और वेस्ट में बिल्कुल सीधे जा रही है, ठीक है? तो दैट्स हाउ सभी डायरेक्शंस में लाइट जाती है बट इन द स्ट्रेट लाइन जाती है, एंड दैट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर से समझ में आ जाना चाहिए, रेक्टिलिनियर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है? बिल्कुल स्ट्रेट, कर्व कहीं नहीं होती है, ऑलराइट? उसके अलावा तुम देख सकते हो कि भाई वैक्यूम और एयर के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो सबसे तेज है, मतलब लाइट से तेज आज तक कोई नहीं गया, ठीक है? लाइट के पार्टिकल से तेज आज तक कोई भी नहीं गया है। एंड व्हाट इज दैट स्पीड? दैट स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर दिस, यू नीड टू रिमेंबर दैट, ठीक है? चलो फिर आगे देखते हैं। अब हम लेक्चर 2 पे आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है हमारा लेक्चर 2, ठीक है? इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, इसमें हमने छोटी सी एक्टिविटी की थी। एक्टिविटी में क्या किया था कि भाई हमने एक बड़ा सा एक पाइप लिया, एक हॉलो पाइप लिया जिसके अंदर से हम देख सकें, और फिर हमने क्या किया? हमने कैंडल जला दी, ठीक है? उस कैंडल की जो फ्लेम है, उस फ्लेम को हमने उस बड़े से पाइप के अंदर से देखने की कोशिश की। जब हम उस बड़े से स्ट्रेट पाइप में से देखेंगे तो हमें वो फ्लेम दिख जाएगी, राइट? लेकिन वही फ्लेम अगर हम किसी कर्व्ड पाइप से देखेंगे, कोई मुड़ा तोड़ा पाइप होगा, हॉलो कोई मुड़ा तोड़ा पाइप है, तो यू आर नॉट एबल टू सी द फ्लेम। द रीजन इज बिकॉज लाइट इज नॉट लाइक, वो ट्रैवल नहीं करती है किसी कर्व में, ठीक है? वो हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। एंड दिस थिंग प्रूव दैट रियली में लाइट क्या करती है? स्ट्रेट ट्रैवल करती है, ऑलराइट? सो वी डिड एक्टिविटी एंड वी गॉट दैट दिस इज द ट्रूथ। उसके बाद देखो हमने बिहेवियर ऑफ द लाइट समझा था। बिहेवियर ऑफ द लाइट कि भाई वो कैसा बिहेव करती है जब कभी भी उसको कोई इंटरफेस मिलता है। इंटरफेस मैंने तो बताया था, सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडिया, ऐसा सरफेस जो कि दो मीडिया को सेपरेट करता है, मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर कोई और मीडियम, जिसके नीचे कोई और मीडियम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं
रिवर बेड का सरफेस, ठीक है, तो अगर हम उसके ऊपर देखें, रिवर की जो ऊपर का सरफेस है, ठीक है, अगर हम उसमें देखें तो उस सरफेस के ऊपर तो एयर प्रेजेंट है और उसी सरफेस के नीचे वाटर प्रेजेंट है. सो यू कैन गेट दैट कि भाई ये जो इंटरफेस है ये इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, उसको सेपरेट कर रहा है. मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर कोई और मीडियम, जिसके नीचे कोई और मीडियम, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इंटरफेस बोल देंगे. तो जब लाइट ऐसे इंटरफेस पे फॉल होती है, जब लाइट एक मीडियम से आते 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 उसे एक ऐसा इंटरफेस मिलता है जिसके नीचे दूसरा मीडियम है, तब क्या होता है, तब लाइट कैसा बिहेव करती है, तब लाइट 3 तरीका का बिहेवियर शो करती है. ठीक है, तब लाइट क्या करती है, 3 तरीके का बिहेवियर शो करती है. ये तीनों फिनोमेना वहां वो शो करती है. क्या होता है, जैसे ही लाइट ऐसे आती है, फॉल होती है, थोड़ी सी लाइट तो वापस चले जाएगी, सेम मीडियम में चले जाएगी. तो यू कैन सी हेयर, थोड़ी सी लाइट वापस चली गई तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, सेम मीडियम में चला गया. ठीक है, वहीं पे आप देखो थोड़ी सी लाइट दूसरे मीडियम में चले जाती है. बिकॉज ये बात तो हमने बिल्कुल पता है ना कि भाई जब पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियां तुम्हें दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट अंदर जा रही है, राइट. तो इसका मतलब सेकेंड वाले मीडियम के अंदर लाइट एंटर कर जाती है, तो थोड़ी सी लाइट रे, थोड़ी सी यू कैन से लिटिल बिट ऑफ लाइट गोज इनटू दी सेकेंड मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. एंड सम ऑफ द लाइट रे इसी पॉइंट पर एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि हमें बात पता है ना, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, पूरे दिन भर वो धूप में रहने के कारण बढ़ जाता है. रीजन, एब्जॉर्ब करता है वो सन की एनर्जी को, एंड दैट इज द रीजन कि देयर आर 3 फिनोमेना गोइंग ऑन. तो जब कभी भी लाइट ऐसे सरफेस पे गिरती है, इंटरफेस पे गिरती है जिसके ऊपर नीचे अलग अलग मीडियम्स होते हैं, उस जगह पे 3 फिनोमेना होता है. थोड़ी सी लाइट वापस उसी मीडियम में चला जाएगी, थोड़ी सी लाइट दूसरे मीडियम में चला जाएगी, और थोड़ी सी लाइट वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो 3 कुछ पार्ट्स हो जाते हैं उसके. ठीक है, सो ये बिहेवियर शो करती है ये जो हमारी यू कैन से जो लाइट रे है, जब कभी भी ऐसा इंटरफेस पे फॉल करती है तो. ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे तुम इसे रियलिटी में देख सकते हो, असली जिंदगी में तुम इसे कैसे पता करोगे. दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जब कभी भी अब की बार देखना तुम, जब कभी भी तुम किसी पुल से जाओ, है ना, नीचे रिवर होगी, है ना, और पुल अगर होगा, तो अगर आप उस पुल से जाएंगे तब आप इन तीनों चीज़ों को देख पाएंगे. कैसे देख पाएंगे, लेट मी टेल यू हाउ. पहला आप देखेंगे कि आपको ना पानी में को चमकता सा नजर आएगा, मीन्स आपको बहुत ग्लोइंग सा लगेगा, आपकी आंखों में भी ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा चमक रही है, कोई चीज़ वहाँ बहुत चमक रही है ना. वो जो चमक आपको मिल रही है वो एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है. ठीक है, फिर आप पानी के अंदर देख पाएंगे, यू कैन सी द फिशेस स्विमिंग, आपको अलग अलग फिशेस स्विमिंग करती हुई दिखाई देंगी, राइट. वो जो आपको फिशेस दिख रही हैं, इसका मतलब लाइट उन तक पहुंच रही है, तभी आपको वो फिशेस दिख रही हैं. दैट मीन्स लाइट इज सम ऑफ द लाइट इज गोइंग इनसाइड. आप सी बेड नहीं देख पाते, सी बेड या फिर रिवर बेड, पूरा बेड नहीं देख पाते, बट यू कैन सी सम ऑफ द लेयर्स ऑफ द वाटर. थोड़े देर कुछ ऊंचाई तक आप देख पाते हो, कुछ डेप्थ तक एक्चुअली आप देख पाते हो, है ना, लेकिन आप पूरा गहराई तक तो नहीं देख पाते, अनलेस वो बहुत ही कम गहरा हो, तब तो आप देख पाओगे, राइट. बट रीज़न यही है कि थोड़ी बहुत लाइट कहाँ चल जाती है, पानी के अंदर चले जाती है. फिर कुछ लाइट पानी के इसी सरफेस पे क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है. तो वहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, भाई उसी जगह पे एब्जॉर्ब हो गई तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपको ये खुद से पता चलेगा. आप कभी शाम के समय पानी के किसी रिवर में जाएं तो आपको ऊपर का सरफेस तो गर्म लगेगा, लेकिन नीचे का सरफेस आपको ठंडा लगेगा. रीजन, कुछ लाइट रे यहीं फॉल हो गई, एब्जॉर्ब हो गई. ठीक है, तो ये 3 फिनोमेना यहाँ पर होते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इन तीनों का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था कि भाई कुछ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टर्न बैक इनटू द सेम मीडिया. पहले ही मीडियम में, मतलब जो फर्स्ट मीडियम था उसी में ही क्या हो गया, लाइट रे वापस चली गई, आई और वापस चली गई, सेम मीडियम में चली गई. सो दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू द सेकेंड मीडियम अलोंग अ चेंज डायरेक्शन. दिस फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जैसे लाइट आती है, फॉल होती है, थोड़ा सा पार्ट चेंज होके अंदर चल जाती है, ठीक है, सेकेंड मीडियम में चले जाती है. दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एंड थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कि भाई यहीं पर ही थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाती है लाइट. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट.
ठीक है। राइट अभी देखो, अभी हमने फिर हम जो सीखना था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीखना था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जैसे जैसे ये देखो, जैसे ये सरफेस देखो, इस पानी के सरफेस पे बिल्कुल इंटरफेस की तरह बिहेव कर रही है, राइट, इंटरफेस की तरह बिहेव कर रही है। इस पानी के सरफेस के ऊपर एयर, इस पानी के सरफेस के नीचे वाटर, तो ये बिल्कुल इंटरफेस की तरह बिहेव कर रही है। अब जैसे ही सारी की सारी लाइट रेज इस इंटरफेस के ऊपर जाएंगी, क्या होगा? थोड़ी सी लाइट रे वापस फर्स्ट एयर में आ जाएगी, है ना, रिफ्लेक्शन होगा, वापस एयर में आ जाएगी, जिसकी वजह से यू आर एबल टू सी दीज। ये जो पहाड़ की आपको थोड़ी बहुत पिक्चर इमेज दिख रही है ना, पहाड़ दिख रहे हैं आपको हल्के हल्के पानी के अंदर, रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिख रहा है कि भाई सारी लाइट रेज इस इंटरफेस पे फॉल होती हैं एंड दे गो बैक इनटू द एयर, सेम मीडियम में चले जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना व्हेन द लाइट रेज फॉल्स ऑन अ सरफेस एंड इट गोज बैक इनटू द सेम मीडियम। ठीक है, सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, अ पार्ट ऑफ इट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट इज कमिंग। दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बट आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट डायरेक्शन। यहाँ पे हम मीडियम की बात कर रहे हैं, भाई वापस फर्स्ट में चली गई, वापस एयर में चली गई, वापस एयर में चली गई, बट आई एम नॉट टेलिंग यू है कि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, है ना। अभी आ रही थी वो, लेट मी शो यू, अभी जैसे ये आ रही थी, ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंट डायरेक्शन। अब वो वापस एयर में चली गई, फर्स्ट मीडियम में चले गए, अलग डायरेक्शन है वो, बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन सेम नहीं होता है, बट यहाँ पर क्या चीज सेम होता है कि भाई वो पहले मीडियम में जिसमें से आ रही थी उसी मीडियम में वापस चले गए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कुछ जनरल टर्म्स जो कि हमें पता होने चाहिए रिफ्लेक्शन के बारे में। तो सबसे पहला टर्म जो होता है दैट इज मिरर। मिरर कैसे शो करते हैं, मिरर क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो देखो हमने क्या किया, एक लाइन बनाई, ठीक है, और उस लाइन के नीचे क्या किया, डैशेस लगा दिया, ऐसे टेढ़े टेढ़े डैशेस लगा दिया। तो ये जो डैशेस हमने लगाए हैं वो हमने क्या शो करने के लिए लगाए हैं, पेंटेड पार्ट। ठीक है, तो मतलब बैक साइड ऑफ द मिरर इज शोन बाय द डैशेस। फ्रंट साइड जो है, जहां पर जिसके सामने हम खड़े होते हैं दैट इज द फ्रंट साइड, वो क्या हुई, सिंपल एक लाइन से हमने उसे शो कर दिया। ठीक है, अब मिरर होता क्या है, अ स्मूथ पॉलिश सरफेस फ्रॉम विच रेगुलर रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस, उसे हम बोल देते हैं मिरर। एक बहुत ही स्मूथ पॉलिश सरफेस हमें मिल रही है, दैट मीन्स बहुत ही प्लेन सरफेस हमें मिल रही है, स्मूथ सरफेस मिल रही है, उसके ऊपर जो ग्रूव्स होते हैं वो बहुत 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 कम होते हैं। ठीक है, आप उसको टच करना आपको बिल्कुल प्लेन लगेगा। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। इसी वजह से आपको पता है उसके अंदर आप अपना इमेज देख पाते हैं, अगर वो ऐसा नहीं होता तो आप अपना इमेज नहीं देख पाते। चलो अभी देखो इंसिडेंट रे, ऐसी लाइट रे जो कि इस मिरर के ऊपर फॉल होती है, इस मिरर के ऊपर गिरती है, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दैट इज नोन एज द नॉट द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, बिकॉज इट इज इंसिडेंटिंग ऑन द मिरर, राइट, तो दैट इज इंसिडेंट रे, नॉट द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आई मिस्टेक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो लाइट रे मिरर के ऊपर फॉल कर रही है दैट इज द इंसिडेंट रे। सो इसका डेफिनेशन हमने क्या लिखा, अ रे ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स टूवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर ए बी क्या हुई, एक इंसिडेंट रे हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ऑन द मिरर वेयर एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर ये इंसिडेंट रे मिरर को स्ट्राइक कर रही है, जिस पॉइंट पे जाके मिरर को टच कर रही है, उसको हमने क्या बोला है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे जैसे ही लाइट रे यहाँ गिरी तो मिरर से टकरा के इट गोज बैक इनटू द सेम मीडियम, वापस चली गई। तो दैट इज द रे लाइट जो कि मिरर से अवे जा रही है, दूर जा रही है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, बाउंस ऑफ होके जा रही है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन से कि भाई दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखो, अ रे ऑफ लाइट विच बाउंसेस ऑफ द सरफेस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो उसे हमने रिफ्लेक्टेड रे बोल दिया है। ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि क्या कर रही है, मिरर के ऊपर फॉल हो रही है, देन इट गोज बैक इनटू द सेम मीडियम, दैट मींस दैट लाइट रे विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द मिरर इज रिफ्लेक्टेड रे।
उसके अलावा फिर देखो हमने क्या सीखा था, नॉर्मल सीखा था। नॉर्मल क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि मिरर से परपेंडिकुलर होती है, हमेशा 90 डिग्री पे बनी होती है, ठीक है। फिर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट रे होती है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे किससे शो करते हैं, एंगल आई, ठीक है। उसी तरीके से आप देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच वाला जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल है उसे हम किससे शो कर रहे हैं, एंगल आर से शो कर रहे हैं, ठीक है। चलो अभी हमें दो एंगल्स और देखने हैं। व्हाट आर दीज, द ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ये वाली जो इंसिडेंट रे होती है ये मिरर के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, मिरर के साथ जो एंगल बना रही है, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट रे है और ये मिरर के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाली जो लाइट रे है रिफ्लेक्टेड रे, वो मिरर के साथ जो एंगल बना रही है दिस इज नोन एज द ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, लॉज देखते हैं। सो व्हाट आर द टू लॉज यू नीड टू नो, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज, ठीक है। हमेशा ये जो एंगल आई है ना, पिंक कलर का एंगल दिख रहे हो तुम, एंगल आई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि देखो रे, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है मिरर पे और यू कैन सी द नॉर्मल। तो इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरीके से ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो जा रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, इस रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड बोथ आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा दोनों इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज द फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ठीक है, गोइंग अवे, द रे विच इज गोइंग अवे, रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे विच इज कमिंग ऑन द मिरर, इंसिडेंट रे। तो देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों और ये नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इंसिडेंट रे आ रही है, मिरर पे फॉल हो रही है, दैन इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, प्लेन चेंज नहीं होता है ना, सेम प्लेन रहता है। सो जिस प्लेन में वो आई है उसी प्लेन में जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड रिमेंबर ये जो लॉज है ना ये हर एक सरफेस फॉलो करती है, ठीक है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक कर्व सरफेस है अगर कोई तो वो नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, फिर हमने क्वेश्चन किया था, आई टोल्ड यू कि क्या हो जब हम लाइट रे को बिल्कुल 90 डिग्री पे मिरर पे फॉल करवाएं तो क्या होगा। मीन्स यू कैन सी हियर, अगर मिरर है और हमने बिल्कुल 90 डिग्री पे एक लाइट रे को फॉल करवाया है, सो आई टोल्ड यू कि भाई इस जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 है ना, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दैट्स व्हाई इट विल गो बैक इनटू द सेम मीडियम, ठीक है, वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं मिरर्स एंड इमेज फॉर्मेशन। सो देखो मिरर क्या होता है, एक हाईली पॉलिश सरफेस होता है, हाईली पॉलिश सरफेस, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर बिल्कुल भी ग्रूजेस नहीं होते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है, और उसमें जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो सब का सब कैसा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ऑलराइट, सो यू कैन सी मिरर एक हाईली पॉलिश सरफेस होता है विच इज क्वाइट स्मूथ एंड कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग अ गुड फ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस, बहुत ही अच्छे अमाउंट में सारी जो लाइट रेज है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ भी जो कि लाइट देता है दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट कैन बी नॉन लुमिनस, इट कैन बी लुमिनस, ऑब्जेक्ट लुमिनस भी हो सकती है, नॉन लुमिनस भी हो सकती है, ठीक है। कैसे, ये कैन यू सी दिस सोफा इज नॉन लुमिनस, ठीक है, बट उसकी इमेज आप देख पा रहे हैं, उसकी इमेज बन रही है, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट जो कि लाइट देता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट। एंड लेट मी टेल यू द इमेज, इसी ऑब्जेक्ट का जो रिप्रोडक्शन मिरर के अंदर होता है
ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, इमेज बोल देते हैं. सो सी द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द मिरर और लेंस इज कॉल्ड इमेज. ठीक है, यही सेम टू सेम ऑब्जेक्ट हमें अंदर दिखाई दे रही है, राइट, पर अंदर है तो नहीं ना, वहां पे तो मिरर है एक्चुअली. सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द इमेज. मिरर के अंदर अगर सेम टू सेम आपको ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है, दैट मीन्स इट इज इमेज. ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ इमेजेस दो तरीके की होती है, एक रियल होती है, एक वर्चुअल होती है. तो रियल के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऐसी इमेज जिसकी मतलब जो बनती है वो किसकी वजह से बनती है, जब सारी की सारी लाइट रेज आकर एक जगह मिल जाएं तब जो इमेज बनती है, दैट इज द रियल इमेज, दैट इज आउटसाइड द मिरर. ठीक है, तो रियल बोलते हैं उसको. और उसमें क्या होता है कि वो किसी सरफेस पे ली जा सकती है, मतलब यू कैन मेक दैट, टेक दैट इमेज ऑन एनी सरफेस, यू कैन से गेट दैट इमेज ऑन एनी सरफेस. ठीक है, लेकिन वर्चुअल के साथ ऐसा नहीं होता है. वर्चुअल एक्चुअली क्या होती है, वर्चुअल के अंदर लाइक ऐसा लगता है कि भाई मिरर के अंदर से ही लाइट आ रही है और तभी हमें वो इमेज दिखती है. सो वी सी दैट इमेज इनसाइड द मिरर. ठीक है, इनसाइड द मिरर हम देख पाते हैं, उसको हम स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं ले पाते, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल. एक और चीज जो तुम्हें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगी, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है. तो इन दोनों में से तुम बता सकते हो दिस इज द रियल इमेज. ठीक है, और ये वाली जो है वर्चुअल है, वर्चुअल हमेशा सीधी होती है. ठीक है, अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. कैसे होता है इमेज फॉर्मेशन, मैंने तुम्हें बताया था. यू कैन सी दिस इज अ मिरर. ठीक है, ये है मिरर, दिस इज द ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट से क्या होता है, लाइट रेज मिरर पे फॉल करती है. ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लाइट रेज मिरर पे फॉल करेंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होती है, जो लाइट देता है वही ऑब्जेक्ट होता है. सो देखो ये सारी की सारी लाइट रेज मिरर पे फॉल करेंगी. पहली लाइट रे मिरर पे फॉल करेगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो सी की तरफ चले जाएगी. ठीक है, ये वाली ए वाली जो है वो सी की तरफ चले जाएगी. उसी तरीके से ये वाली जो लाइट रे आ रही है सेकेंड वाली, वो बी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके डी की तरफ चले जाएगी. फिर जब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे मिरर के पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पे ये दोनों मीट करेंगी, एंड दैट पॉइंट इज एक्चुअली टेकन एज द इमेज. ठीक है, तो मतलब अब क्या होगा, जब कोई देखेगा तो उसे क्या लगेगा, जैसे यहाँ से कोई इंसान देख रहा है, ये आई देख रही है, तो ये जो आई है उसको लगेगा कि भाई यहाँ से लाइट रे आ रही है, क्योंकि उसको तो आती हुई लाइट रे नजर आती है, मतलब उसको तो ऐसा लगता है वहां से लाइट रे, बिकॉज अब वो मिरर के अंदर देख पाएगा इमेज को. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग एंड दैट्स हाउ ओनली इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, अब हमने क्या किया था, मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि भाई प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है हमेशा. सो यू कैन सी इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर वर्चुअल होती है. वर्चुअल आपको पता है भाई, सिर ऊपर तो सिर ऊपर, पाँव नीचे तो पाँव नीचे, ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर पाँव नीचे तो इमेज का भी सिर ऊपर पाँव नीचे, तो दैट इज नोन एज द वर्चुअल. सीधे खड़ी है, अपराइट खड़ी है. ठीक है, वर्चुअल एक तो इनसाइड है, इरेक्ट में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई वो बिल्कुल सीधे खड़ी है. ठीक है, तो हम बोलेंगे वो कि वो इरेक्ट है. थर्ड देखो, जो इमेज का साइज होता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर होता है. ठीक है, तो इट इज नॉट लाइक कि बड़ी इमेजेस छोटी इमेजेस, ऐसा नहीं होता, सेम साइज का इमेज मिलता है. इसी तरीके से ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर खड़ा है, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर खड़े होती है. ठीक है, सेम डिस्टेंसेस फ्रॉम द मिरर. फिर देखो लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द लेटरली इन्वर्टेड. देखो जैसे इस पर्सन ने अपना लेफ्ट हैंड आगे किया हुआ है ना, और यू कैन सी इन द इमेज में देखो ऐसा लग रहा है जैसे उसी आदमी ने अपना राइट हैंड आगे किया हुआ है, तो इसी का लेफ्ट हैंड उसका राइट हैंड बन जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड बन जाता है. तो मतलब ये तो चेंज हो गया ना, राइट लेफ्ट का कंफ्यूजन हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड द लेटरली इन्वर्टेड. ठीक है, उल्टा करके उसको खड़ा कर दिया जैसे. फिर देखो हमने पेरिस्कोप पढ़ा था, तो पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्लेन मिरर से बना होता है, और ये आपको हेल्प करता है कैसे, किसी भी एक ऐसी जगह के ऊपर देखने से जहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हो, मतलब डायरेक्ट विजन आप नहीं कर पा रहे हो. जैसे जैसे ये वॉल है ना, अब कोई पर्सन अगर यहाँ खड़ा है, यहाँ से वो देख रहा है, तो वो इस वॉल के थ्रू तो नहीं देख पाएगा. हाउ, फिर वो कैसे देख पाएगा, यूजिंग द पेरिस्कोप. अब क्या होगा, ठीक है, पेरिस्कोप वो लगाएगा, दिस इज द पेरिस्कोप, तो वो यहाँ से देखेगा, उसे जो यहाँ पर इमेज नजर आएगी वो इमेज एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट की मिलेगी. तो देखो कितना बढ़िया काम हो गया, दीवार के पार देख पा रहा है सेम हाइट पर, जस्ट बाय यूजिंग अ सिस्टम, दैट इज द पेरिस्कोप. ऑलराइट, अब पेरिस्कोप में क्या होता है, दो ऐसे प्लेन मिरर्स हम लोग लगाते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे हम प्लेन मिरर लगाते हैं, एक दूसरे को फेस करते हुए प्लेन मिरर होते हैं. लाइट रेज पहले आती हैं, फर्स्ट मिरर पे फॉल होती हैं, एंड देन
वो कहाँ चली जाती हैं, सेकेंड मिरर पे चल जाती हैं, देन इट इज फॉल्स एंड आफ्टर दैट इट रिफ्लेक्टेड एंड गोज इनटू द आईज ऑफ द पर्सन विच इज सीइंग, है ना। तो आपको इस तरीके से इजीली इमेजेस दिख जाती है बियॉन्ड दैट वॉल, ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हो उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। यूजेस कि भाई किसी क्राउड के ऊपर तुम देख पाते हो, है ना। फिर तुम जैसे सोल्जर्स इसे यूज़ करते हैं, अब खुद तो वो सोल्जर्स बंकर्स में होंगे, बट हाउ टू सी द एनिमीज, उनका कैसे दिखेगा, वो क्या एक्शन ले रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा। सो दे कैन यूज पेरिस्कोप, वो खुद बंकर में रह सकते हैं, छुपे रह सकते हैं, एंड दे कैन यूज द पेरिस्कोप एंड सी व्हाट द एनिमीज आर डूइंग। दैट वुड बी सो कूल, राइट। उसके डिसएडवांटेजेस भी होता है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होंगे। तो देखो डिसएडवांटेज क्या होगा कि तुम्हें क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी, तुम्हें उतना ज़्यादा क्लियर नहीं मिलेगा जितना आपको फर्स्ट टाइम में मिलता है, क्योंकि 2 प्लेन मिरर्स होंगे, है ना। फिर देखो इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर धूल चल जाएगी तो आपको ब्लर इमेजेस नज़र आ सकती हैं, वहाँ पे रस्टिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो ये भी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, और यही इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। यू नीड टू मेंटेन दोज, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप भी एक टॉय की तरह लिया जा सकता है। कैलिडोस्कोप जनरली जो ऐसे लोग लेते हैं जो कि आर्टिस्ट होते हैं, विच क्रिएट डिजाइंस, दे यूज दिस, है ना, टू गेट दी इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज। सो कैलिडोस्कोप के अंदर कुछ भी नहीं होता, 3 प्लेन मिरर्स हम लोग यूज करते हैं, रेक्टेंगल शेप के प्लेन मिरर्स। उनको किस तरीके से जो है अरेंज करते हैं, प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर, ठीक है। तो बीच में एक ट्राइंगल बन गया, सो यू वुड बी गेटिंग अ हॉलो ट्राइंगल थ्रू आउट दैट। तो इट वुड बी लाइक मेकिंग, हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगुलर ये एक सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। और यू कैन टेक दैट, ये प्लेन मिरर्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस। अब हमने उसको क्या किया, एक तरफ एक सिंपल ग्लास लगा दिया, ठीक है, नॉर्मल ग्लास विच कैन सी थ्रू, ठीक है, और दूसरे तरफ यू पुट दैट अ आई होल जिसमें से आप देख सको। फिर उसके अंदर आप कोई स्टार्स, आप यू कैन से बीड्स, अलग अलग चीज़ें, इवन पीसेस ऑफ द बैंगल्स, वो सब डाल सकते हो, एंड देन यू कैन सी द वेरियस टाइप ऑफ ब्यूटीफुल पैटर्न्स इनसाइड दैट, एंड दीज आर टोटली अमेजिंग, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द स्फेरिकल मिरर्स एंड द इमेज फॉर्मेशन। देखो स्फेरिकल मिरर में सबसे बढ़िया बात पता है क्या होती है, कि वो स्फेरिकल होते हैं। वो कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे मिरर्स जिनकी सरफेस कर्व होती है, प्लेन नहीं होती है, कर्व्ड होती है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और आपको पता है ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ये एक बड़ी सी कांच की बॉल का एक पार्ट होता है। मतलब बड़ी सी एक कांच की हॉलो बॉल हमने बनाई, ग्लास की, सी थ्रू ग्लास की एक हॉलो बॉल हमने बनाई, पूरा स्फेयर बनाया, एंड देन वी कट इट आउट। हाउ, लेट मी शो यू, लाइक दिस। हमने बड़ी सी हॉलो ग्लास का पूरा बॉल लिया, एंड देन वी कट इट आउट। अब ये जो पार्ट तुम्हारे सामने आएगा ना, इस पार्ट से हम 2 मिरर्स क्रिएट कर सकते हैं, कन्वेक्स, कनकेव। अगर तुम क्या करोगे, तुम आउटर पार्ट को, इसके बाहर के पार्ट को पेंट कर दोगे, तो इनसाइड वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग बनेगा, एंड दैट विल बिहेव एज अ कनकेव मिरर, ठीक है। वहीं पर अगर तुम अंदर वाले पार्ट को पेंट कर दोगे, तो बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट बन जाएगा, एंड दैट विल टेक दिस एज द कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आपको 2 तरीके के मिरर्स मिल जाएंगे, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसमें बल्ज आउट सरफेस तो कैसी होती है, पेंटेड होती है, और केव टाइप सरफेस इज लाइक दी रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक है। वहीं पर जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर में इनर पार्ट जो है वो कैसा होता है, वो पेंटेड होता है, बाहर का बल्ज आउट पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, जिससे रिफ्लेक्शन एक्चुअली में अकर होता है, ठीक है। नाउ मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, यू कैन सी द टर्म्स। फर्स्ट वन इज द पोल हेयर। तो देखो दिस इज द मिरर हेयर, ठीक है, ये है मिरर और ये भी है मिरर, ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर। और ये जो डॉटेड सर्कल आप देख रहे हो ना, ये डॉटेड सर्कल एक्चुअली में क्या है, दिस डॉटेड सर्कल इज द स्फेरिकल बॉल, जिसका पार्ट ये जो मिरर थे, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। अब देखो ये जो पोल है दैट इज ऑन द मिरर, मिरर के ऊपर है ये पोल, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के बीचों बीच एक पॉइंट है, उसको हमने बोल दिया पोल। दोनों ही मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये पोल होता है,
ठीक है, इसे हम कैपिटल P से शो करते हैं। नेक्स्ट आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये इस बड़ी सी बॉल जिसका पार्ट ये मिरर थे, इस बड़ी सी बॉल का सेंटर होता है, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसी तरह कन्वेक्स मिरर का जो सर्कल है, कन्वेक्स मिरर का जो स्फीयर है, उसका जो सेंटर, उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो तुमको पहले से पता चल गया होगा कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये मिरर का पार्ट नहीं होता, मतलब ये मिरर के ऊपर नहीं होता, ये मिरर के फ्रंट में होता है कनकेव के केस में, और कन्वेक्स के केस में मिरर के पीछे होता है। ठीक है, इसे हम कैपिटल C से शो करते हैं। अब देखो थर्ड वन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस बड़े से स्फीयर का जो रेडियस है, ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल। इन दोनों के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हम कैपिटल R से शो करते हैं दोनों ही केसेस में। फिर देखो प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है, उनको कनेक्ट करती है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस हियर। ठीक है, सो यू कैन टेक दैट। अब देखो अपर्चर। अपर्चर मतलब डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये तो जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो डायमीटर है, यू कैन सी द ए बी पार्ट है। ए बी पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज द मिरर एंड दिस इज द ए बी पार्ट। तो ये जो ए बी पार्ट है, ये ए बी पार्ट इज एक्चुअली द अपर्चर, द डायमीटर ऑफ द मिरर एक्चुअली इज द अपर्चर हियर। ठीक है, अब देखो आप लोग के लिए हमने पूरा का पूरा जो है लगवा दिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल फोकस। तो देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस इज एक्चुअली अ पॉइंट जहां पे कनकेव मिरर के केस में ऐसा पॉइंट जहां पे सारी की सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं, सब की सब आ जाती हैं, सारी की सारी पैरेलल लाइट रेज जाएंगी, मिरर पे फॉल होंगी, मिरर पे फॉल होने के बाद वो सारी की सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो दैट इज नोन एज द फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। कन्वेक्स के केस में क्या होगा, यू कैन सी द मिरर हियर, यू कैन सी द फोकस। अब देखो सारे की सारी लाइट रेज आएंगी और मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस चले जाएंगी, बट वो कैसे जाएंगी, वो उन्हें ऐसा इस पाथ पर जाएंगी जैसे वो इस फोकस से आ रही हो। ठीक है, सबको ऐसा लगेगा जैसे इस फोकस से आ रही हो। सो ऐसा पॉइंट जहां से सारी की सारी लाइट रेज डाइवर्ज होती नजर आती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस बिटवीन दिस फोकस एंड पोल इज नोन एज द फोकल लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दिस पोल एंड एफ द फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। फिर हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी कि भाई कनकेव मिरर के केस में तुम कैसे फोकल लेंथ पता कर सकते हो। सो आई टोल्ड यू व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक अ कनकेव मिरर एंड यू नीड टू टेक अ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर। फिर सनलाइट में जाओ, सनलाइट में कुछ इस तरीके से एडजस्ट करो कि तुम्हें सन की इमेजेस पेपर पे मिल जाए, है ना, और ऐसा होगा भी, फोकस मिलेगा तुमको मिलेगा फोकस। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे यू कैन सी द इमेज ऑफ द सन हियर, बहुत ब्राइट होगा, थोड़ी देर में पेपर जलने लग जाएगा, इतना ज्यादा सन की लाइट वहाँ फोकस हो जाती है। जैसे ही आपको वो पॉइंट मिल जाए, आप क्या करें, मिरर की और पेपर के बीच की डिस्टेंस मेजर कर लें, दैट वुड बी द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर। ऑलराइट, फिर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर इमेज। ठीक है, तो इमेज कनकेव मिरर कैसी इमेजेस बनाता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, लेट्स सी दैट। 6 टाइप ऑफ केसेस वी आर गोइंग टू सी इन द कनकेव मिरर। पहला क्या होता है, पहला है जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। तो देखो कनकेव मिरर में ये खासियत होती है कि अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दोगे तो आपको अलग अलग साइजेस की इमेजेस मिलती हैं और अलग अलग जगह इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो वी प्लेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द वेरी पोल, हम अलग अलग जगहों पे उनको रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। पहले हमने रखा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनती है फोकस पे। कैन यू सी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, कहीं दूर बड़ी सी ऑब्जेक्ट है और इमेज बन रही है फोकस पे बिल्कुल छोटी सी पॉइंट साइज। सो यू कैन सी द हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं सेकेंड थिंग, बियॉन्ड सी। तो हम लोगों ने ये जो सी है, लेट मी टेल यू, ये जो सी है इसके पीछे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, मतलब हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, सी पे रख दिया, मतलब सी के पीछे रख दिया हमने इसे। तो यू कैन सी हियर बियॉन्ड सी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में, इन्वर्टेड, रियल। ठीक है, एंड लिटिल बिट ऑफ डिमिनिश, ज्यादा नहीं है बट लिटिल बिट ऑफ डिमिनिश साइज तो है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर जब हम और पास लेके चले गए ऑब्जेक्ट को और हमने कहाँ रख दिया है, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इमेज होती है वो बिल्कुल एज इट इज सेम साइज की होती है और तुम्हें इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक सेम केस बट इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, दैट वुड बी द चेंज, ठीक है। फिर देखो और पास लेके चले जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को लेके चले जाते हैं। जब हम लेकर गए तो इमेज पीछे चली गई और वो बड़ी बन गई। अब नाउ यू आर गोइंग टू गेट द लार्ज इमेज हियर, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज, ठीक है। अब देखो हम इसे और पास लेके चल जाते हैं, फोकस पे ऑब्जेक्ट लेके चले जाते हैं, तो यू कैन सी द इमेजेस एट इन्फिनिटी, बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा दूर इन्फिनिटी पे बन जाएगी इमेज, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड एट इन्फिनिटी एंड वेरी लार्ज, ठीक है। फिर देखो और पास लेके चले जाओ, फोकस और पोल दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दो, तब क्या होगा, तब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो पीछे चले जाएगी, मतलब अब वो वर्चुअल मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। यू कैन सी द 6th लास्ट केस between P and F, so you are going to get behind the mirror image, enlarged image and virtual and erect, ठीक है। तो these are the 6 cases of the concave mirror। अब देखते हैं हम कन्वेक्स मिरर का केस, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस है और आपको दोनों में ही वर्चुअल मिलेगी इमेज, इरेक्ट मिलेगी और छोटी मिलेगी, ठीक है। हमेशा यू कैन गेट दी कन्वेक्स मिरर से हमेशा तुम्हें छोटी इमेजेस भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो जब फोकस पे तुमने रखा था, फोकस नहीं, वी कैन से इन्फिनिटी पे तुमने जब ऑब्जेक्ट को रखा था तो देखो तुम्हें कहाँ इमेज मिल रही है, फोकस पे, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू गेट हाईली डिमिनिश्ड इमेज, फोकस पे इमेज मिलेगी, बहुत छोटी मिलेगी, है ना, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी क्योंकि इट इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम इन्फिनिटी से और पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो, व्हाट यू विल बी गेटिंग, अ स्मॉल इमेज, स्मॉल इमेज मिलेगी, हमेशा पोल और फोकस के बीच में मिलेगी, छोटी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, ठीक है। सो यू कैन यूज देखो अब तुम कनकेव कहाँ यूज करोगे, कन्वेक्स कहाँ यूज करोगे, प्लेन कहाँ यूज करोगे, इतने सारे मिरर्स हैं। प्लेन मिरर तो तुम तब यूज करोगे जब तुम्हें क्या करना होगा, सेम साइज का फोटो लेना होगा, इमेज हमें देखना है, सेम साइज का देखना है, यू कैन डू दैट। अगर तुम्हें ऐसा इमेज देखना है जो कि बड़ा हो जाए, ठीक है, मतलब यू वांट टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन यू विल बी यूजिंग द कनकेव मिरर। और अगर तुम्हें छोटा इमेज चाहिए देन यू विल बी यूजिंग द कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो डेंटिस्ट लोग क्या करते हैं शेविंग के लिए, ठीक है, वो लोग कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। इवन मेकअप मिरर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सोलर कुकर के केस में भी यू कैन से हियर कि एक कनकेव सरफेस होती है, उसके फोकस पे वो ऑब्जेक्ट रख जाती है जिसको हमें पकाना होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से सारे की सारी सनलाइट यही फोकस हो जाएंगी एंड जो खाना है वो जल्दी कुक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो इफ़ यू वांट टू गेट अ स्मॉल इमेज ऑफ बिग एरिया, बिग ऑब्जेक्ट, देन यू कैन यूज द कन्वेक्स मिरर। हमारे जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं, साइड व्यू मिरर्स होते हैं, वो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं, नॉट दी कनकेव, कन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ठीक है। सो यू कैन गेट दैट। अब चलो हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। चलो अभी हम लास्ट देखते हैं, दैट इज द लास्ट लेक्चर जो हमने स्टडी किया था, दैट वाज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या बोला था कि भाई जब लाइट रे क्या करती है, एक मीडियम से आती है, दूसरे मीडियम में एंटर होती है, लेकिन हल्का सा अपना पाथ चेंज करती है। दैट चेंज इन पाथ, दैट फिनोमेना जिसकी वजह से वो बीच में अपना जो है पाथ चेंज करती है, थोड़ा सा बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए देखो इंसिडेंट रे जो कि इस इंटरफेस पे फॉल करती है, ठीक है, एंड देन इट गोज इनटू द सेकेंड मीडियम, तो ये देखो रिफ्रैक्टेड रे, अब वो रिफ्रैक्टेड रे बन गई जो कि दूसरे मीडियम में चले जाती है, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इट गोज इनटू द रिफ्रैक्टेड रे। देयर इज अ नॉर्मल, है ना, और दिस एंगल, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसी तरीके से इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर देखो 3 तरीके से हमने देखा था, मैंने तुम्हें बताया था रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड तेज रहती है, ठीक है, और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड थोड़ी धीरे हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एयर और वाटर की अगर हम कंपेयर करें तो एयर एक रेयर मीडियम होगा, क्यों, क्योंकि इसमें पानी के मुकाबले जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा रहती है। पानी के अंदर, वाटर के अंदर लाइट की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। तो इन दोनों का पेयर अगर हम देखें, एयर और वाटर का पेयर, तो उसके अंदर वाटर एक डेंसर मीडियम होगा और एयर एक रेयर मीडियम होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो जब कभी भी लाइट रे
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या करती है वो फटाफट से अपना रास्ता थोड़ा सा बेंड कर लेती है, वो मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल कर लेती है, ठीक है। तो वो कहाँ चल जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल चल जाती है। और आप देख सकते हैं ये जो आर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज रिफ्रैक्शन एंगल। तो रिफ्रैक्शन एंगल छोटा हो जाता है, इंसिडेंट एंगल बड़ा हो जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें डेंसर से रेयरर मीडियम में आने के लिए, तो लाइट रे क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, क्योंकि वो डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे से रिफ्रैक्टेड रे, अब रिफ्रैक्टेड जो एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो बहुत बड़ा होगा एज कंपैरिजन टू द इंसिडेंस, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि क्या हो जब लाइट रे को हम बिल्कुल सीधा फॉल करवाएं, 90 डिग्री पे फॉल करवाएं, इंसिडेंट रे को बिल्कुल 90 डिग्री पे फॉल करवाएं, तो क्या होगा, बिना पाथ डेविएट करे, बिना अपना पाथ चेंज करे, लाइट रे बिल्कुल सीधे सेकंड मीडियम में चले जाएगी, ठीक है। वो अपना पाथ बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। ऑलराइट, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यही है कि जब इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे लाइट अपना पाथ क्यों चेंज करती है, क्यों बेंड करती है, क्योंकि अचानक से उसे दूसरा मीडियम मिल रहा होता है, अचानक से उसकी स्पीड को रोक रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तेजी से आ रही है स्पीड, अचानक से एक ऐसा मीडियम सामने आ रहा है जो उसमें उसका स्पीड बहुत ही कम हो जाएगा, तो अचानक से जो डिक्रीज है उसकी स्पीड वो कम हो जाती है ना, उस पॉइंट पे बहुत जल्दी से अचानक से कम हो जाती है, जिसकी वजह से इट बेंड्स एंड इट शोज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फिर देखो वी टॉक अबाउट द लेंसेज ऑल्सो। लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने हुए होते हैं, जिसकी या तो दोनों सरफेसेस कर्व्ड होती हैं या फिर कम से कम एक सरफेस उसमें प्लेन और एक कर्व रहती ही रहती है, ठीक है। और लेंसेज हर जगह यूज होते हैं, लाइक यू कैन सी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स, कैमरास, प्रोजेक्टर्स, इन सब में लेंसेज यूज होते हैं। सो दीज आर क्वाइट गुड, है ना। इवन हमारे जो ग्लासेस होते हैं, हमारे जो करेक्टिव ग्लासेस होते हैं, हमारे आईज में जो डिफेक्ट होता है उसमें हम ग्लासेस यूज करते हैं, राइट। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ग्लासेस बनते हैं, तो वो भी लेंसेज के ही बने होते हैं, है ना। तो लेंसेज और भी हेल्पफुल होते हैं। नाउ यू कैन सी दीज टाइप्स ऑफ, यू कैन से शेप ऑफ द लेंसेज। इस तरीके की शेप ऑफ द लेंस जो होता है उसे हम बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक प्लेन हो गया है सरफेस, एक स्फेरिकल, तो यू कैन सी दिस इज द प्लेनो कन्वेक्स एंड दिस इज द कनकेवो कन्वेक्स, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का शेप अगर आपको मिलेगा लेंस का, यू विल बी सेइंग द डबल कनकेव, देन यू कैन से द प्लेनो कनकेव, एक सरफेस प्लेन हो गई है, फिर यू कैन सी द कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ लेंसेज हियर। एक लेंस एक ऐसा होता है बीच में से मोटा और एजेस पे से थिन, उसे हम बोलेंगे डबल कन्वेक्स एंड वी यूज इट एज अ कन्वेक्स लेंस। एक लेंस हम जिसकी बात करेंगे जो कि मिडल से होता है थिन और एजेस से होता है थिक, मोटा होता है, तो उसको हम कनकेव लेंस बोल रहे हैं। सो वी टॉक अबाउट द कनकेव इन द कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इनके कुछ जो टर्म्स हैं वो हमने स्टडी किए थे। सो फर्स्ट टर्म इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपको पता है क्योंकि लेंस की दो कर्व्ड सरफेसेस होती हैं, इसी वजह से लेंस के दो स्फेरिकल स्फीयर्स होंगे और जिसकी वजह से दो उसके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। तो देखो ये है हमारा जो लेंस, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, दिस इज द कन्वेक्स लेंस। अब ये जो कन्वेक्स लेंस होता है, इस सरफेस के लिए, इस कर्व्ड सरफेस के लिए जो स्फीयर है वो इतना बड़ा ये रहा, और इस सरफेस के लिए जो स्फीयर है वो ये रहा। Now there are two spheres, so two centers of spheres. You are going to get the two centers of spheres C1 and C2. ठीक है, उसी तरीके से आप कनकेव में देख सकते हैं, these are the two curved surfaces. एक सरफेस का स्फेयर, दूसरे सरफेस का स्फेयर, so you are going to get two center you can say of curvatures here. ठीक है, दो होते हैं तो इसीलिए हमने उनको C1 C2 नाम दे दिया होता है। फिर आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली, C1 C2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यू कैन सी द पॉइंट O हेयर, एक ऐसा पॉइंट जो लेंस के बीचों बीच होता है एंड उस पॉइंट से पे अगर लाइट रे इंसिडेंट की जाती है तो बिल्कुल सीधे निकल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसे ज्योमेट्रिकल सेंटर भी बोल सकते हैं और कैपिटल O से हम इसे शो करते हैं। फिर देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यू कैन सी हियर द, यू कैन से द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू कैन सी द C1 एंड O ऑल्सो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो दो स्फीयर्स हैं, हर एक लेंस के पास दो स्फीयर्स है, तो यू आर गोइंग टू गेट द टू रेडियस ऑफ स्फीयर्स ऑल्सो, ठीक है।
ऑलराइट, सो वी हैव डन आवर पार्ट, वी हैव डन द होल रिविजन हियर, ठीक है, दैट इज इट। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने वो चारों के बाद जो हमने फोकस लेंथ का देखा है, तो कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, सारी की सारी लाइट रेज आ रही होती हैं एंड दे मीट आफ्टर गोइंग थ्रू द लेंस, सो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। उसी तरीके से यू कैन सी द कनकेव मिरर लेंस हियर। तो देखो कनकेव लेंस में क्या होगा, सारी की सारी लाइट रे आती थी और वो इस लेंस से पास होके फैल गई, जैसे वो इस पॉइंट से आ रही हूँ, सो दे लुक लाइक कि भाई वो जैसे यहाँ से आ रही हूँ। सो दिस इज द नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द यू कैन से लेंस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ। द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस के बीच का डिस्टेंस इज नोन एज द फोकल लेंथ, उसे हम एफ से शो करते हैं, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड दैट ऑल्सो, हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। Alright, so we have revised the whole chapter. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.